Hello everyone, welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of The Hindu, 9th of August 2023. From today's newspaper, these are the three important topics which we would be discussing with respect to your UPSC syllabus. The number one is about the Assam Rifles. See, there is no editorial which is given on the topic of Assam Rifles, but there is certainly a news on the first page of your newspaper which talks about the Assam Rifle in the context of the Manipur violence. So we would be looking at this topic relating it to your security. I hope you all are aware of your syllabus. So it is part of your internal security, Assam Rifles. Second, we will be talking about the rupee internationalization, and it is part of your economics, that is the GS paper 3, and the climate related concerns, again GS paper 3, environment. And today we will be discussing two important MCQs, which is your PYQ, or they are part of your the previous year's questions. So we would have a look on that as well. Now, so before starting the discussion, I would like to request all of you to please do hit the subscribe button, like and share our videos to as many as students as possible so that we could help you to ease your UPSC journey. Correct? Now, let us begin with the first important topic which says the Assam rifle. बट असम राइफल को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का कंसेप्ट है। जैसे कि आपके पास आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, उसी तरह से एक कंसेप्ट है ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। मतलब यहाँ पे 7 सिक्योरिटी फोर्सेस का ग्रुप है। जब हम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के बारे में बात करते हैं, दैट मीन्स इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 security forces in India, which is under the Ministry of Home Affairs. See, if you look at the map of India, have a look here. ठीक है, अगर आप इंडिया के मैप को देखते हो तो कुछ इस तरह से आई एम नॉट एबल टू डू इट प्रॉपरली राइट नाउ, बट कुछ इस तरह से आपको ये जो मैप है वो दिखेगा। तो जब हम बात करते हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्ट वाला सेक्शन हो गया, और जहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्रीज, इनका जो 99% बॉर्डर है वो इंटरनेशनल कंट्रीज को ज्यादा टच करता है। फिर ये वाला पार्ट हो गया नॉर्थ वेस्टर्न, इट इज ऑल्सो ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर्स, राइट। तो ये कुछ आपके पास एरियाज है, लाइक जम्मू कश्मीर का एरिया है, लद्दाख का एरिया, ये सेंसिटिव एरियाज होते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्टिंग करी जाती है, या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस होती है यहाँ पे। तो उसी तरह से हमारे इंडिया में 7 सिक्योरिटी फोर्सेस है, और उनका जो ग्रुप है उसको एक साथ बोला जाता है द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। So what are those 7 central armed police or the security forces? The number one is about the Assam Rifles, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले। It is the you know the topic which is in the newspaper. Second, about the border security forces, आप सभी लोगों ने BSF के बारे में सुना होगा। The Central Industrial Security Forces CISF, Central Reserve Police Forces, that is the CRPF, Indo-Tibetan Border Police ITBP, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड द सशस्त्र सीमा बल। तो इन सब को डिटेल में पढ़ने के लिए आपको सिक्योरिटी के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे when we will be completing it after the geography portion. Now हमारा फोकस है असम राइफल के ऊपर। तो जैसे कि हमने कहा कि सेंट्रल आर्म जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसमें 7 सिक्योरिटी फोर्सेस है, तो जो असम राइफल है उसी का एक हिस्सा है। तो इट इज अ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस अंडर द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। कब बनी थी? In 1835, initially it was known as the Charter Levy or the Chhatchar Levy, to primarily protect the British tea estates and the settlements against the tribal raid. Now, अगर हम इसके कंट्रीब्यूशन का बारे में बात करते हैं, तो असम का जो रीजन है, असम का जो एरिया है, वहां पे आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ट्रेड होता है, उस पूरे ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर असम राइफल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है।
ट्रेड के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, और यही रीजन है कि इनको राइट आर्म भी बोला जाता है ऑफ द सिविल एंड द लेफ्ट आर्म ऑफ द मिलिट्री. It is the right arm of the civil people and it is the left arm of the military. It has so much significance in that region. और इनके दो बटालियंस होते हैं, और ये जो बटालियंस है आपके पास, दे आर स्टेशन्ड इन द जम्मू एंड कश्मीर, और इन्हीं का एक आपको नेशनल डिजास्टर रिलीफ फीचर जो बटालियन मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा, जो कि क्या करता है जब भी नेशनल डिजास्टर कमिटीज फ्लड जैसी डिजास्टर कंडीशन आती है या लैंडस्लाइड जैसी कंडीशन आती है, तो वो वहां पे इनके साथ डील करते हैं. Although India has been contributing to the UN peacekeeping for many years, the addition of the Rifle Women team of Assam Rifle adds another social and human dimension to the commitment to the community of the nations. देखो, हम ऑलरेडी यूएन पीस कीपिंग के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बात है. लेकिन यहाँ पे जो असम राइफल है, इसी के अंदर हमने एक और क्या कह सकते हैं कि राइफल वुमेन टीम को ऐड कर दिया गया, तो ये हमारे कमिटमेंट को और स्ट्रांगली दर्शाता है. इट shows very strongly the commitment that how India is trying to commit its the upliftment of the community of the nations, how India is going to uplift the women of the nation. अब इस असम राइफल का इंडिपेंडेंस के बाद में यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इसका क्या रोल रहा है. सबसे पहले आप सभी को फेमस वॉर पता होगी 1962, इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट को लेते हुए एक बहुत बड़ी वॉर हो गई थी, विच इज नोन एज द सीनो इंडिया वॉर और द साइनो इंडिया वॉर 1962. तो जब ये वॉर हुई तो यहाँ पे असम राइफल का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल देखा गया. Operations in a foreign land as a part of Indian peacekeeping force to Sri Lanka in 1986 7 sorry, so it was known as Operation Power. Now 2019 में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उन्होंने बोला कि जो इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस है उसको इस असम राइफल के साथ मर्ज कर देते हैं. अब ये आईटीबीपी क्या है, जो माउंटेनियस एरिया होते हैं, तिब्बतन जैसे जो माउंटेनियस एरियाज होते हैं, वहां पे ये लोग काफी ज्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं. यहाँ पे अगर कोई सिक्योरिटी का ध्यान रखना होता तो आईटीबीपी को यहाँ पे लाया जाता था. तो इट इज डिप्लॉयड ऑन द बॉर्डर गार्डिंग ड्यूटीज, जैसे कि आपके पास लद्दाख जो कि एक माउंटेनियस एरिया, वहां पे जो काराकोरम पास है आपके पास, जापला पास है अरुणाचल प्रदेश में, इंडो चाइना जो बॉर्डर एरिया है वहां पे इनको लाया जाता है. करेक्ट. So this is all about the Assam rifles. I hope this is absolutely clear. Take 1 minute, think about it. If you have any doubt, please do write down in the comment section. Coming to our second topic, which says the grammar of commerce in a new age of geopolitics. See, when we talk about this grammar of commerce in a new age of geopolitics, it is concerned with the internationalization, or basically I could say that is the nationalization of the rupee. What does that mean? पहले न्यूज कंटेक्स्ट समझते हैं. तो राइटर कहना चाह रहा है that it seems to be a new financial architecture जहाँ पे जो साउथ की जो करेंसीज है उनको रिप्लेस करके जो नॉर्थ की करेंसीज है वो आगे आ रही है. अब आई होप कि आप सभी को साउथ और नॉर्थ के बारे में पता है. इफ आपको नहीं पता है तो आपको मेरी पहले की वीडियोस देखनी चाहिए, और उसमें मैंने बहुत अच्छे से ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ क्या होता है वो समझा रखा है. तो इट इज नॉट अ जोग्राफिकल कंसेप्ट कि जो नॉर्थ कंट्रीज है वो नॉर्थ है, जो साउथ है वो साउथ है. नो, when we are referring the countries of the north, we are referring to the developed countries, and south we are referring to a developing country. तो इंडिया एक बहुत ही फेवर्ड ट्रेडिंग पार्टनर है. इंडिया के पास बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है मार्केट को लेके, और ये किस बेसिस पे आप बोल रहे हो? जी बिल्कुल, 2018 से लेके अभी तक कम से कम 23 एडवांस कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज ऐसी है जिसने इंडिया के साथ करेंसी स्वैप अग्रीमेंट या अरेंजमेंट्स के लिए हाँ बोली है. अब आप बोलोगे मैडम ये करेंसी स्वैप फैसिलिटी क्या होती है, ये करेंसी स्वैप अग्रीमेंट क्या होता है? देखो,
जब कोई भी दो कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्रीज जो है आपस में लोन लेती है या फिर कोई ट्रेड करती है, कुछ भी कर रही होती है, अगर वो राजी हो जाती है कि हम आपस में लोकल करेंसी के थ्रू करेंगे, यानी मान लो कि इंडिया और रशिया अगर कोई क्रूड ऑयल का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो दोनों मान जाते हैं कि चलो हम इंडियन रुपी में आपको पेमेंट करेंगे, यानी लोकल करेंसी में आपको पेमेंट करेंगे, तो इट इज लाइक अ करेंसी स्वैप फैसिलिटी। यूजुअली आपका जो ट्रेड होता है उसका पेमेंट आप किस में करते हो, डॉलर में करते हो, करेक्ट। तो दिस इज अबाउट द करेंसी स्वैप फैसिलिटी, जहां पे आप लोकल करेंसी को प्रमोट करते हो, ठीक है। नाउ यूज ऑफ रुपी फॉर द इंटरनेशनल पेमेंट, तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि इंडिया का जो रुपी करेंसी है उसका बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टर्न आया है आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर, जो कि 2022 की अर्ली 2022 में स्टार्ट हुआ। कैसे? देखो, जब ये वॉर हुआ रशिया यूक्रेन के बीच में, तो पूरा यूरोप या फिर यूएसए पर्सी वी कुड से दैट, उन सभी लोगों ने रशिया के ऊपर भारी सैंक्शंस लगा दिए, यानी कोई भी उनके साथ ट्रेड नहीं कर सकता क्योंकि पेमेंट किस में होगी, डॉलर्स में होगी। एंड अल्टीमेटली यूएस ने क्या किए, सैंक्शंस लगा दिए हैं। So it is a problem for the Russia. The issue being serious for the Russia because Russia is one of the largest supplier of India's 202.2 million tons of the crude oil, and for India a large market for the Russian export. तो अब सेंक्शन लग गए तो भाई अब वो तेल बेचेगा कैसे, बेचेगा तो उसकी पेमेंट कैसे होगी। एंड ऑल्टरनेटिव रूट क्या था कि इंडिया और रशिया इंडियन रुपी के अंदर ट्रेड करें, ट्रांजैक्शन करें, ठीक है। तो अब आपको जब ये प्रॉब्लम ये समझ आ गया कि लोकल करेंसी को जब हम इमर्ज करवाने की कोशिश करते हैं, लाइक अ करेंसी स्वैप, राइट। बट यहाँ पे हम बात करते हैं स्टैटिक पे, व्हाट इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रूपी। देखो, एडिटोरियल की डिटेल की कहानियों में मत जाना, वहां पे बात करी गई है कि ठीक है रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ है, उस वॉर की वजह से सैंक्शंस लगे हैं रशिया पे, दैट इज द रीजन कि रशिया बहुत ज्यादा लिमिटेशंस में आ चुका है क्योंकि कोई ट्रेड नहीं कर पा रहा है, डॉलर से पेमेंट नहीं हो पा रहा है, और इंडिया और रशिया ने डिसाइड किया है कि या तो इंडियन रुपी में पेमेंट करते, बट वो रशिया के अकाउंट पे काम नहीं आ रहा है क्योंकि रुपी और कहीं एक्सेप्ट नहीं है, तो चाइना का जो युआन करेंसी है अल्टीमेटली उसके थ्रू ट्रेड करते हैं। तो कहीं ना कहीं वी आर सो मच डिपेंडेंट ऑन द अदर कंट्रीज, एंड कहीं ना कहीं सिर्फ डॉलर का जो डोमिनेंस है इट इज नॉट गुड फॉर द ऑल कंट्रीज। तो यहाँ से हम बात करते हैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी के बारे में। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम लोकल करेंसी की यूज को इंक्रीज करते हैं इन द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, राइट। दैट मीन्स इफ यू आर ट्रेडिंग आउटसाइड योर ओन कंट्री, द क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें अगर आप इनका लोकल करेंसी जो है उसका यूज करना इंक्रीज करते हो, तो दैट इज समथिंग इज नोन एज द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रुपी। अब इसमें क्या क्या चीजें आती है, आप रुपी को प्रमोट करते हो इंपोर्ट के टाइम, एक्सपोर्ट के टाइम, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के टाइम। देखो, ये बेसिक सी चीज आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी, इकोनॉमिक्स में होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट। इसके अंदर दो चीजें आती है, एक आता है आपके पास करंट अकाउंट और एक आता है आपके पास द कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो जब हम करंट अकाउंट के बारे में बात करते हैं तो मेनली ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का उसके साथ डील करता है, जबकि जो कैपिटल अकाउंट होता है ये आपके साथ क्रॉस बॉर्डर जो मूवमेंट होते हैं कैपिटल्स के उनके साथ डील करते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट हो गया, लोन हो गया। तो हमारा जो रुपी है इट इज फुल्ली कन्वर्टेबल इनटू द द करंट अकाउंट बट नॉट इन द कैपिटल अकाउंट। तो ये आपकी तरफ से एक प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपको अभी ये करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या है, तो फुल्ली कन्वर्टेबिलिटी क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं है पता है, तो प्लीज नोट डाउन इन योर कमेंट सेक्शन। I will definitely make a new video on it about the complete static portion of this topic from economics. But हमें इंटरनेशनलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, हमारा डॉलर पे जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है। 88.3% जो है आपके पास ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है वो किसमें होता है, डॉलर में होता है। उसके बाद में यूरो का नंबर आता है, जापानीज येन, द पाउंड स्टर्लिंग। अगर रुपी के बारे में बात करें तो 1.7% इसकी तवज्जो है और कुछ भी तवज्जो नहीं है।
और पूरी डिपेंडेंसी हमारे पास किसके ऊपर है, डॉलर के ऊपर। ये हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्बैलेंस करता है। So this is absolutely blunder. We should definitely encourage the local currency. Okay, here, बढ़े आगे, ठीक है। Now, we're coming to the third topic. It talks about the climate events and an umbrella for the urban health. देखो राइटर इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो रिसेंटली ब्लंडर हो रहे हैं, लाइक राजस्थान में आपके पास अर्थक्वेक देखने को मिल रहा है, जयपुर में, मुंबई में आपके पास हैवी रेन हो रहा है, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़ फ्लड्स आ चुके हैं, बिपरजॉय साइक्लोन आ रहा है। तो ये सब जो भी इवेंट्स हो रहे हैं रिलेटेड टू द साइक्लोनिक स्टॉर्म, उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ रहा है अर्बन हेल्थ, यानी अर्बन सिटीज में जो लोग रह रहे हैं। तो चैलेंज क्या आ रहा है वहां पे, कॉमन वाटर या फिर जो वेक्टर बॉर्न डिजीज है, जैसे कि टाइफाइड है, कॉलरा है, डायसेंट्री, द लेप्टोस्पायरोसिस, द मलेरिया, द डेंगू, राइट? So conditions in these areas are most likely to be conducive for the spread of water and vector-borne disease. तो चैलेंज सिर्फ ये नहीं कि आपने डिजास्टर कंट्रोल कर लिया, चैलेंज ये है कि अब उस डिजास्टर के बाद में ये डिजीज वाले चैलेंजेस है, हेल्थ वाले चैलेंजेस है, उसके साथ आप कैसे डील करोगे। सबसे ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से होते हैं आपके पास शहरों में, ये जो कच्ची झोपड़ियों में जो लोग रह रहे होते हैं, जो स्लम जो है वहां पे जो लोग रह रहे होते हैं, कंजस्टेड एरियाज, पानी भरा हुआ है, which gives a suitable, a favorable condition for the growth of the vector-borne diseases, right? That is the household in the urban areas, particularly the less developed parts of the city, such as the slum, the urban settlement colonies, is likely to be the most vulnerable group. The large majority of people in these slums they live in the poverty areas, the slum areas. तो एक स्टडी आई है डिजीज वल्नरेबिलिटी को लेके इन द इंडिया जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ, एंड दिस स्टडी हाईलाइट्स टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला क्या बोलता है, दैट हाउसहोल्ड इन जनरल विद पुअर सोशियो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स है, वहां पे मलेरिया जो है ज्यादा होता है, और इट इज अर्बन हाउसहोल्ड जहां पे रूरल काउंटर पार्ट के कंपेयर में दे सिग्निफिकेंटली ग्रेटर और सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। तो रूरल एरियाज के कंपेयर में जो अर्बन एरियाज है, जैसे कि मुंबई इज अर्बन एरिया, बट वहां की कच्ची झोपड़िया की जो हालत है वो बहुत बुरे हैं। दैट इज द रीजन कि वहां पे वैक्यूम डिजीजेस ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू द रूरल। So it is well known that dengue too affects the urban population more. और secondly ये रिपोर्ट क्या बोलती है, that from climatically high and high vulnerable states, तो मलेरिया के केसेस वहां पे आपको ज्यादा मिलेंगे। तो मॉनसून सीजन के बाद में दीज आर द चैलेंजेस व्हिच यू हैव टू वर्क ऑन। हमें हमारे हेल्थ सिस्टम को रीबिल्ड करना पड़ेगा। हमने कोविड से इंपॉर्टेंट लेसन लिए कि हेल्थ इज सो इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू वर्क फ्रॉम इट, लाइक कोविड एक्सपीरियंस वाज सो इमेंस फॉर अस, राइट? So this is the gist of the editorial. Now coming to the two MCQs, देखो 2015 में इकोनॉमिक्स का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का टॉपिक है, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया था, दैट कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी इम्प्लाइज, जैसे आज हमने बात करी दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें दो चीज होती है, द करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट, जिसमें हमने बोला कि रुपी जो है करंट अकाउंट में एब्सोल्युटली कन्वर्टेबल होता है और कैपिटल अकाउंट में नहीं होता है। तो उसी बीच से अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता होता है तो ये क्वेश्चन आप कर पाते। दैट नंबर वन, इट इज बीइंग एबल टू कन्वर्ट द रूपी नोट्स इनटू द गोल्ड। सेकंड, allowing the value of rupee to be fixed by market forces. Third, freely permitting the conversion of rupee to other currencies and vice versa. Fourth, developing an international market for currencies in India. So these are the four options. आप इस कंसेप्ट को पढ़िए और ये जो है आप आंसर करिए, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन सेम 2014 में, इसीलिए बोला जाता है पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो। देखो 2015 में बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्वेश्चन आया, 2014 में भी बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्वेश्चन आया, ठीक है? तो विथ रेफरेंस टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द करंट अकाउंट? इनमें से करंट अकाउंट क्या है? क्या बैलेंस ऑफ ट्रेड है, फॉरेन एसेट है, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स? ठीक है, एलिमिनेशन करने की कोशिश मत करिएगा, पैटर्न चेंज हो गया, क्या पता ओनली वन, ओनली टू पेयर, ओनली थ्री पेयर करके धक्का लग जाएगा वहां पे और फिर रोते रह जाओगे कि नहीं हो रहा है। तो बेटर है हर एक कंसेप्चुअली आप यहाँ पे समझिए और इसको करिए,
ठीक है ना। आई होप दिस वीडियो इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन। कोई भी डाउट हो प्लीज डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एनी वैल्यूबल फीडबैक यू आर ऑलवेज वेलकम। Please do subscribe to the channel IS Cafe. Thank you so much. Like and share.